بہروپ۔ یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی می بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوا میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رکیتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غمزدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑتوڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے جو میرا بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑتوڑ بارش ہوئی تھی۔ جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے، شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگھڑایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا۔ طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا۔ جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کی شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بوجھ تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھول ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں، یہ جن کو تکیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا، وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کریں۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہو،
लेकिन वो फीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास वो बेंच ना हो जिस पर लिटाकर एनालिसिस करते हैं, बल्कि बिछाने के लिए सफ हो। इस पर ऐसा सामान हो कि आमने सामने बैठकर बात कर सकें। तो इन डेरों को, इन तकियों को शुमाली अफ्रीका में, अलजायर में, ट्यूनिस में जाविये के नाम से याद किया जाता है। इनको जाविया कहते हैं, कुछ रबात भी कहते हैं वहां पर, लेकिन जाविया ज्यादा मुस्तमिल है। हैरानकुन बात है, बावजूद इसके कि जाविया एक खास इसमें ज़र्फ मकान है शुमाली अफ्रीका का, लेकिन अंदलस के ज़माने में अंदलस की सरजमीन पर ज़ाविये नहीं थे। ट्यूनिस, अलजायर में रब्बात थे। यहाँ सूफी लोग बैठकर लोगों को, आने जाने वालों को एक छत फराहम करते थे, रहने के लिए जगह देते थे, खाने के लिए रोटी पानी देते थे। कुछ देर लोग बैठते थे, दुखी लोग आते थे, अपना दुख बयान करते थे और उनसे शिफा हासिल करके डायलॉग करते थे। सचमुच जो साइकोलॉजिस्ट कहा करते हैं वो मुहैया करते थे। हमने भी इसी तकलीफ में प्रोग्राम का नाम जाविया रखा है। इस लिहाज से तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि ये असल जाविया नहीं है। नकल बमुताबिक असल है, लेकिन स्पिरिट, रूह इसकी वही है। कोशिश इसकी यही है कि इस तरह की बातें यहाँ होती रहें और तबीयत का बोझ, जो और प्रोग्रामों में और कालमों और किताबों से दूर नहीं होता, वो किसी तौर पर यहाँ दूर हो सके। आप जब भी किसी डेरे पर किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए जाएंगे तो आपके लाशऊर में टेस्ट का एक मीटर जरूर होगा। मैं देखूं ये कैसा आदमी है। आप अक्सर ये कहकर चले आते हैं कि यार वहां गए थे, वो तो कुछ नहीं है। अपने मयार के साथ आदमी चेक करता है, लेकिन जब आप पूरी तलब के साथ इम्तिहान पास करने के अंदाज इख्तियार किए हुए जाएं, तो फिर आपको इन खाकिस्तरों में अजब किस्म के लाल मिल जाते हैं। मुश्किल तो होगी कि वहां सिंध चले जाएं, थरपारकर के डेजर्ट में चले जाएं या रोही में चले जाएं। कुछ ना कुछ आपको दानिश की बात मिल जाएगी। दानिश की बात जो है, ये ऐसे ही लोगों को मिलती है, किताबों से नहीं मिलती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जाविया, बावजूद इसके कि ये असल जाविया नहीं है, लेकिन इसकी खूबी, इसकी स्पिरिट वही है, वैसी ही रखने की कोशिश की गई है। स्पिरिट से याद आया कि औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंगो रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहंशाह मुअज्जम, लेकिन मैं फनकार हूँ और एक फनकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि शहंशाह मुअज्जम जिनको अपने तबहरे इल्मी पर बड़ा नाज है, धोखा दे सकता हूँ, और मैं गुच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, यह बात तौज़ीह औकात है। मैं तो शिकार को भी कारे बेकार समझता हूँ। ये तुम जो चीज मेरे पास लाए हो, इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, नहीं साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हजूर, आप वक्त के शहंशाह हैं। अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो मैं आपसे 500 रुपया लूंगा। जाहिर है उस वक्त 500 बहुत होंगे। शहंशाह ने कहा, ठीक है, 500 मेरे लिए कुछ नहीं है, मंजूर है, जाओ। तो वो शर्त तय करके चला गया और फिर सोचने लगा। घर जाकर भी परेशान हुआ कि मैं शेखी में ऐसी शर्त बद कर आ गया हूँ। मैं कौन सा ऐसा रूप बदलूं कि बादशाह को पता न चले। फिरता फिराता तहकीक व तफ्तीश करता रहा। लोगों से पता चला
औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया में मरहटों पर और बहमनी सल्तनतों पर अक्सर हमले किया करता था। उन्होंने कहा, ये साल छोड़कर अगले साल फिर इन पर हमला करेगा। ये खबर बहरूपिये को, जो वकाए निगार थे, उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, ठीक है। चुनाचे वो यहाँ से बापियादा सफर करता हुआ उस मकाम पर पहुंच गया जहां बहमनी सल्तनत थी। वहां जाकर उसने एक बुजुर्ग का रूप धारा, दाढ़ी बढ़ा ली, सब्ज कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मनके गले में डाल लिए और अल्लाह की याद में ऐसा मुस्तगरिक हुआ कि बड़ी देर तक, बहुत दूर तक लोगों को अपने इस शहर में मुब्तला करता रहा। इर्द गिर्द के लोग जो थे, बाबा पीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। लोग आने लगे और तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाने लगे। जैसा कि हमारे यहाँ का रिवाज है, दूर दूर तक उसका नाम आने लगा। लेकिन वो बड़ी इस्तकामत के साथ साल भर इस रियाजत में मसरूफ रहा जो बुजुर्ग किया करते हैं। एक साल के बाद जब अपना लाव लश्कर लेकर औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा खौफजदा था। जब उसने मरहटों के पेशवा पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किलाबंद थे कि उसकी फौजें तोड़ न सकीं। परेशानी का आलम हो गया और यकीन हो गया कि शायद उसका नाकाम लौटना पड़े और उसकी हुकूमत पर बुरा असर पड़े। चुनाचे लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं दरख्त के नीचे। आप उनकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे जाकर डिस्कस करें, फिर दुआ करें और फिर टूट पड़ें। शहनशाह परेशान था। बेचारा भागा भागा उनके पास गया, सलाम किया और कहा, हुजूर, मैं आपकी खिदमत में जरा। उन्होंने कहा, हम फकीर आदमी है, हमें ऐसी चीजों से क्या लेना देना। शहनशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है। जैसे इंसान बहाने किया करता है, आप हमारी मदद करें। मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फकीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज जोहर। औरंगजेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनाचे उसने बाद नमाज जोहर जो हमला किया और ऐसे जोर का किया कि जज्बे से किया और पीछे फकीर की दुआ थी और ऐसी दुआ कि वो किला टूट गया और फतह हो गया। मफ्तू जो थे वो पांव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतह मंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद कि वो टोपियां सी के और कुरान लिखकर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा इमामा पहनता था। बड़े जमुर्द और जवाहर लगे होते थे। उसने जाकर अमामा उतारा और खड़ा हो गया। दस्त बस बद, दस्त बस्ता के हुजूर, ये सब कुछ आप ही की बदौलत हुआ है। उसने कहा, नहीं, जो कुछ अल्लाह ने किया है। उन्होंने कहा, आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ हुजूर। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फकीर लोग हैं। उसने कहा कि दो परतने की माफी, दो बड़े कस्बे, इतने बड़े जितने आपके औकाड़ा और पुत्तों की हैं, वो उनको देता हूँ, और जमीन और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की माफी। उसने कहा, बाबा, ये हमारे किस काम की हैं सारी चीजें, हम तो फकीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगजेब ने बड़ा जोर लगाया लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। उसने अपने तख्त के ऊपर मुतमक्किन होकर एक नया फरमान जारी किया। जब शहनशाह फरमान जारी कर रहा था, एन उस वक्त कुंदन बहरूपिया इसी तरह मंके पहनने आया। शहनशाह ने कहा, हुजूर, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? आप मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहनशाह मुअज्जम, अब ये हमारा फर्ज था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते तो जनाब आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाएं। उसने कहा, तुम वो हो? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगजेब ने कहा,
मुझे 500 रुपया देने में कोई इतराज नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने और 2 कस्बे की माफी दी, जब आपके नाम इतनी जमीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को ये रियायत दी कि इस मेरी मुमलिकत में जहां चाहें जिस तरह चाहें रहें, आपने इस वक्त क्यों इनकार किया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुजूर, बात यह है, जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी। वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता था कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। तो ख्वातीनो हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा ये जाविया 2 नंबर ही सही, बेशक बहरूप ही सही। तो आप दुआ करें, इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी पेचीदगियां, कुछ ऐसे बोझ दूर होते रहें जो किसी और तरह से नहीं हो पाते। जाविया के पहले प्रोग्राम में हाजरीन के जनाब अशफाक अहमद से कुछ सवालात और उनके जवाबात। सवाल, इस तरह की नशिस्त तो रूरल ट्रेडिशन है हमारी, ये भी इसी का एक सिलसिला है। प्रिंटेड वर्ड ने इसको तकरीबन खत्म कर दिया है। जवाब, हाँ, ये लंबी कहानी है। ओरल ट्रेडिशन ताकतवर है। पैगंबरों का इल्म आम करने के लिए ओरल ट्रेडिशन ही होती है। पैगंबर भी खड़े होकर अपनी बात बयान फरमाते थे। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हर पैगंबर के बारे में फरमाता है, ए लोगो देखो। और एतराज करने वाले ये कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर है, ये तो बाजारों में खड़ा है, हम लोगों से बातें कर रहा है। फिरऔन ने भी यही कहा था कि मैं मूसा को कैसे मान लूं, इसके बाजुओं में तो कंगन भी नहीं है। तो मैं नहीं मानता। ट्रेडिशन बिल्कुल ओरल ही चला, और मैं समझता हूँ, मेरा ये जाती ख्याल है कि ये ओरल ट्रेडिशन प्रिंटेड वर्ड के रास्ते से होकर इलेक्ट्रिक मीडिया की मार्फत ओरल ट्रेडिशन में तब्दील हो रही है। होना चाहिए, बशर्ते कि इसका रूप बहरूप वैसा होना चाहिए जिस तरह इब्तदाई कदीम जमाने से है। सवाल, मॉडर्न वर्जन में मैं समझता हूँ कि आपका रूप यकीनन होगा, लेकिन ये ह्यूमन प्रेजेंस की बात है। जो अवाम थे ओरल ट्रेडिशन में मौजूद थे, इसको हम कैसे रिवाइव करें? जवाब, इसको हम रिवाइव कर सकेंगे, बिल्कुल दोबारा जन्म देने से कर सकेंगे, जहां इंसान इंसान से मिलेगा, इंसान इंसान से बात करेगा, वहां हम अपनी हर सोच को रियलाइज करते ही रह जाएंगे। सवाल, सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हम किसी शख्स को कंडेम करते हैं या उसका बतलान करते हैं या किसी शख्स को बुरा भला कहते हैं, तो क्या हमारे जहन में ये आरजू तो नहीं पोशीदा होती कि हम खुद वैसा बनना चाह रहे हैं? हसीन आदमी को कम हसीन आदमी रद्द करते हैं, अमीर आदमी को कम अमीर आदमी रद्द करता है, ताकतवर कम सेहतमंद खिलाड़ी को रद्द करता है। तो क्या इसके पीछे कोई ऐसी आरजू तो नहीं होती कि काश मैं भी ऐसा बन जाता? कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है, मेरा ख्याल है कि यकीनन इसमें है। अगर कोई महरूम शख्स है किसी भी एतबार से, तो फिर वो कंडेम तो करेगा, लेकिन उसकी महरूमी के पीछे कुछ असबाब हैं कि जो जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है, ये जिनको मुआशरा दूर कर सकता है या करना चाहिए, तो फिर उसके कंडेम करने का जवाब बन जाता है। मैं समझता हूँ कि खालिस इंसानी बात है कि जो बुनियादी महरूमी है किसी भी हवाले से, वो एक रिएक्शन रद्द-ए-अमल तो जनरेट करेगी। तो अब उससे कैसे बचा जाए? सवाल, बचने की बात बाद में आती है। कैसे पता लगाया जाए कि ये शख्स जिस बात का इजहार कर रहा है उसके पीछे अवामिल जो थे वो मुख्तलिफ हैं, बजाय इसके कि वो उनको सचमुच कंडेम कर रहा है। उनके पीछे ये आरजू है कि मैं भी ऐसा होता। जब इस मकाम पर बंदा पहुंचता है, इस मकाम की एक जरूरत होती है, वैसे एक्ट नहीं करेगा, वो दूसरे नीचे उतार देंगे,
جو بندہ غریب ہوتا ہے ویسا کام نہیں کرے گا، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب بندہ امیر ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، ویسا بیہیو نہیں کرے گا تو لوگ اسے چھین لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جب غریب تھا تو بہت اچھا ہوتا تھا، اللہ میاں نے اسے دولت دی ہے تو بہت غلط ہو گیا ہے۔ جواب: برخوردار، یہ آدمی جو امیروں کو رن ڈاؤن کر رہا ہے کہ دیکھو جی کتنا ظالم ہے۔ سوال: یہ صرف کہیں ایسا تو نہیں کہ حسد بول رہا ہو؟ جواب: حسد بھی بولتا ہے۔ اگر حسد بولتا ہے تو پھر وہ خود ہونا چاہتا ہے نا۔ میں ڈرتا ہوں، میرے منہ میں خاک، میں کہیں جرت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مارکس کچھ اور تھا۔ کوئی بھی نظریہ آدمی جو دیتا ہے، کوئی فلسفہ ہے یا کوئی بات، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اس بندے کی ذات کے اندر وہ کچھ اور ہی ہو سکتے ہیں، مطلب جو اس کے ظاہری نظریات ہیں وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ بچپن کی محرومی اور شدید غربت مارکسزم کی طرف لے جاتی ہے، یا کچھ اور وقت اس نے گزارا ہے کسی اور طریقے سے، تو ممکن ہے کہ کوئی اور نظریہ اختیار کر لے، تو اب اس بندے کی سٹڈی بن جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ کیا ہے، اس کو الگ سطح پر جانچیں۔ آپ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اگر ہیومن ڈگنیٹی کو انشور کر لیں، ہر آدمی کی عزت کو بحال کر دیا جائے، تو پھر ایسی صورتحال بن جائے گی، پھر کنڈیم کرنے کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بھی کچھ کم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بے چینی تو انسان میں رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ مثلا ایک بہت اچھا پلیئر ہے، اچھی گیم کھیلتا ہے، میں نہیں کھیل سکتا، میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں خوش ہوں، واہ جی واہ کیا اچھا کھیلتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، فضول ہے، اس میں کیا ہے؟ انسان میں اپنی کمزوریاں اور اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس میں جو ہے وہ مجھ میں کیوں نہیں؟ تو ایک حسد کہہ سکتے ہیں یا انسان کی شخصی کمزوری کہہ سکتے ہیں۔ کچھ قدرتی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ قدرتی طور پر خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، وہ مارجن لے کے آتے ہیں، اور جن کے پاس مارجن نہیں ہوتا وہ کیا کرے؟ صورت کو ایک معیار بنا دیا گیا ہے، آدمی جتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا اس کا ظرف ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو برداشت بھی کر لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، کنڈیم بھی نہیں کرتا۔ اگر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہر آدمی کو عزت نفس ملے، اس کو بڑا ہونے کا احساس دیا جائے، تو وہ کنڈیم نہیں کرے گا۔ بڑا ہونے کے لیے جو لیور آپ اسے عطا کر رہے ہیں وہ عزت نفس کا ہے۔ دولت یا شہرت یا حسن ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہماری سوچ کا جو رخ ہے وہ ذرا سا مختلف ہے، جس کی ہمیں پریکٹس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جب یہ انٹریکشن بڑھے گا، جو آپ نے سوال کیا تھا انسانی لیول کے اوپر، اس کے اندر پہنچ کر سوچئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ مضمون اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون کا نام تھا بہروپ۔